As the 30-day window closes, the Law Commission has received more than 46 lakh responses. But as this deadline draws close, efforts to build resistance to the move are also gathering pace. After calling it a polarization bid and something that is only intended for elections, and then raising the Hindu Rashtra bogie as well, now the anti-UCC brigade is actually mobilizing opposition to UCC at places of worship. A mosque in Malad in Maharashtra has put up a QR code for people to express their opposition against UCC. The worshippers are being told, scan these codes pasted outside the Had Noorani Masjid and register your objection with the All India Muslim Personal Law Board. But there are progressive voices within the community who are now red flagging this kind of ghettoizing and misleading of the Muslim community by en masse telling them at a place of worship that this is against your community, and without applying your own mind, go ahead and oppose the UCC because we say so. Today, Kerala Governor Arif Mohammed Khan actually spoke about the time when he walked out of the Union Ministry when the Shah Bano bill was brought about in opposition to this kind of bowing by the then Congress government in front of radicals. Arif Mohammed Khan had walked out, and he today recalled how the same intimidation of progressive Muslim voices was done, the same misleading, the same ghettoization. जमात-ए-इस्लामी आपने नाम सुना होगा, एक संस्था है, एक जमीयत-उल-उलमा है, एक जमात-ए-इस्लामी। मौलाना मौदूदी उसके संस्थापक हैं। मौलाना मौदूदी की एक छोटी सी किताब है, राइट्स ऑफ द स्पाउसेस। वो कहते हैं कि इसने मुसलमानों की आईवी मतलब पारिवारिक जीवन को पूरी तरह तबाह करके रख दिया है। 1986 जब इतना बड़ा एक बड़ा आंदोलन चलाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, और अगर मैं कहूं कि धमकी और हिंसा की भाषा प्रयोग की है, संसद के बाहर खड़े होकर ये कहा गया जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खासतौर से मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस मामले में हमारी मुखालफतें करें, उनकी टांगें तोड़। यूसीसी गोवा में लागू है। एक साहब हैं हैदराबाद से, वो कह रहे हैं कि ये कोशिश है हिंदू कानून को मुसलमानों पर लादने की। But for every Arif Mohammed Khan, there'll be a community leader, there will be politicians, there will be the likes of the AIMIM who dismiss any voice seeking reform as nothing more than a Sarkari stooge, now even calling them a Sarkari Musalman. हमारे बाज़ मुसलमान हैं, जमहूरियत है, आपको राय रखने का अख्तियार है, मुझे भी राय रखने का अख्तियार है। और जो लोग आज नरेंद्र मोदी के इशारों पर कठपुतली बनकर नाच रहे हैं, मैं तुमको सरकारी मुसलमान बताता हूं। बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाओ, কালকে থেকে আমরাও শাড়ি পিনদিমো, তোমরাও সবে শাড়ি পিনতো। পুরুষ মেয়ে সবে শাড়ি পিনতে লাগ। এক বরস আমরা দাঁড়িয়ে রাখবো, এক বরস তোমরা দাঁড়িয়ে রাখো। আর সরকারের একবারে প্রধানমন্ত্রী থেকে লিয়ে নিচে চিফ মিনিস্টার পর্যন্ত সবে ওইটাই খাইতে লাগে। So today on this India Upfront special broadcast, we're asking a very simple question. For years it has been argued that reform must not be imposed from top but must come from within a community. Then why is that same sane voice for reform from within the community being branded, being silenced and being threatened? All right, and joining us on this India Upfront special is Ashwini Upadhyay, lawyer and petitioner in the case. We also have with us Abnijesh Awasthi, political analyst. To my left, I have Kalimul Hafiz, political analyst, Tanveer Ejaz, professor at the Ramjas College, and Yasmin Farooqi, National General Secretary of the SDPI. I want to start by asking you, Tanveer Ejaz Saab, do you think it is fair what Mr. Owaisi said when
He said that people who are supporting the UCC are nothing more than Sarkari Musalman. This is a sponsored, projected support, nothing genuine about it. Yeah, I think when he said that there are certain section of Muslims who are supporting UCC, I think what he means is that perhaps these Muslims don't know the kind of ramifications that UCC will have when it comes, with one nation, one culture, one law. So I think it's a very serious issue of UCC that needs to be debated very carefully. And it needs to be debated not just particularly about Muslims, but also amongst all religions. And also, not just only amongst religion, but cutting across castes, tribes, all sections of the society must be taken care of when we talk about UCC. And it should not just figure in what OSCE has talked about, that's just a very small part of the larger debate. But yes, is it? some of the Muslims, yes, of course, who are because largely with the these are the government. people who ended up being the spokespersons. Either it's the politicians, or it is NGOs like the All India Muslim Personal Law Board, or you've got organizations like the Jamaat-e-Islami, and none of them, by the way, will talk of it as a legal, socio-cultural change. They will always say this is about a religious issue. Yeah, I think it's important. I think one must look into the kind of feminist movement that has taken place in our country. Prior to independence also, there was a feminist movement who were talking about that we must have a uniform civil code, which would be gender just civil code, right? And after this also, if you take the whole issue of Shah Bano case, or for that matter, many of the cases which have come up after independence, the feminist movements are basically Muslim Mahila Andolan, for instance. They are asking for a uniform civil code, for a gender just code, right? It should not be just only targeting Muslim women or targeting a very specific, a small section of a Muslim woman, right? It should be open to all sections of the society. And my viewpoint is that it must cut across caste, color, religion, why tribes should be left out, or why Christian women, or why Sikh women, they shouldn't be brought within the ambit of this discussion. Okay, 46 lakh opinions have been given to the Law Commission. But now already when Sushil Modi ji, who is the head of the parliamentary panel, he comes and says, oh, we may give some exceptions to the tribes in the northeast. Again, these kind of fears are exacerbated कि आपने already exceptions देना शुरू कर दिया है. What is this uniformity that you're talking about? देखिए पद्मजा जी, अभी तक तो ड्राफ्ट आया नहीं है, इसलिए किसको एक्सेप्शन दिया है, किसको छूट दिया है, किसको इंक्लूड किया, उसको नहीं कह सकते. लेकिन मैं जो ओएसी जी ने बोला उसकी बात करता हूं. पहली बात तो जैसे कोई जज कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन का वो विरोध नहीं कर सकता, कोई आईएएस किसी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन का विरोध नहीं कर सकता, उसी तरीके से कोई सांसद और विधायक जो इस संविधान की शपथ लेता है और शेड्यूल 3 में कहता है कि मैं इस संविधान को अक्षरशः फॉलो करूंगा, एक एक शब्द को फॉलो करूंगा, एक एक लेटर को फॉलो करूंगा, इसके बावजूद उसका विरोध करना, एक बार कॉमन मैन विरोध करे तो समझ में आता है. लेकिन जो व्यक्ति इसकी संविधान की शपथ लेके ही पार्लियामेंट में एंटर किया गया है, ओवैसी साहब को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट और जितनी भी वीआईपी व्यवस्थाएं जो टैक्स पेयर के पैसे से मिलती है, वो इसलिए मिलती है उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लिया है और ये लिया है कि हम इसको 100% फॉलो करेंगे, 100% इंप्लीमेंट करेंगे. इसके बावजूद वो इसका अपोज कर रहे हैं. मुझे लगता है टाइम आ गया है कि अब सिटीजनशिप भी डिफाइन होनी चाहिए, वोटर आईडी की कंडीशन भी डिफाइन होनी चाहिए और ऐसे लोगों की सदस्यता खत्म होनी चाहिए पार्लियामेंटेरियंस की जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के जो टेनेट्स हैं उनका जो अपोज कर रहे हैं. अगर ये आर्टिकल 44 अमेंडमेंट में आया होता 1950 के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी बहुमत का उपयोग करके किया होता तो समझ में आता है. ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का. और हमने 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमने शपथ क्या लिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द हिंदूज ऑफ इंडिया, वी द क्रिश्चियन ऑफ इंडिया, वी द पारसीज ऑफ इंडिया नहीं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन. यानी पूरे भारत के लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया है और कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को मान लिया, कॉन्स्टिट्यूशन की इथोस को मान लिया है. कॉमन सिविल कोड इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So anyone who is supporting the common civil code, instead of calling them सरकारी मुसलमान, वो तो संवैधानिक मुसलमान है. हर कोई संविधान को बिलीव करता है, संवैधानिक नागरिक हैं, वो संवैधानिक मुसलमान है, संवैधानिक हिंदू है, संवैधानिक कोई भी और रिलीजन है. ये किसी को ब्राउ बीट करना नहीं है. कलीमुल हाफिज साहब, नहीं, देखिए
आप इसकी पूरी ये जो बयान दिया है उसकी पीछे की पृष्ठभूमि समझिए। पृष्ठभूमि यह है कि यही मोदी सरकार जिस 2016 में अपना एक विधि आयोग बनाया जिसको 21वें विधि आयोग कहते हैं, उसने पूरे भारत देश से 4,83,47,596 भारतीयों के सजेशन लेकर एक निष्कर्ष पर पहुंचे और 185 पेज की रिपोर्ट भारत सरकार को दी। और वो रिपोर्ट में क्या उसका निष्कर्ष था कि यूसीसी नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, यानी ना इसकी आवश्यकता है और ना इसकी वांछनीय है। तो मोदी सरकार पहले तो ये बताया कि उसने अपने ही विधि आयोग की रिपोर्ट को रिजेक्ट क्यों कर दिया, उसके कारण क्या थे, देश को पता लगना चाहिए। तभी तो वो 22वें आयोग में अचानक प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका में एक सवाल का सामना किया, उसके बाद उससे घबरा कर जैसी पहली उन्होंने चुनावी सभा की, उसी में चुनावी सभा में बोलते हुए बाकायदा कहा कि अब एक समान नागरिक संहिता देश की जरूरत है। तो वो बताएं कि आखिर उन्होंने अपने पुराने वाले विधि आयोग की रिपोर्ट को रिजेक्ट क्यों किया। नंबर एक, हमारा मानना यह है कि जो विधि आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की उसमें बाकायदा डिटेल उन्होंने बताया कि इस देश की जो विविधता है उसमें अगर आप एक समान नागरिक संहिता लागू करेंगे तो उसकी विविधता को चोट पहुंचेगी, देश की अखंडता को, एकता को चोट पहुंचेगी, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। अब अचानक ये शगुफा जो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए और समाज में मुसलमानों को निशाना साधते हुए ध्रुवीकरण करने के लिए किया गया। आपने फिर भी इसका जवाब नहीं दिया कि आज के दिन देयर आर मुस्लिम्स हु आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स, देयर आर पीपल हु हैव टेकन आउट प्रोसेशंस इन पटना हु आर सेइंग वी सपोर्ट दिस, द मुस्लिम महिला आंदोलन इज सेइंग वी सपोर्ट this. Now what have you done? You are saying अरे ये जो सपोर्ट कर रहे हैं ना ये तो असली मुसलमान ही है, तो सरकारी है। देखिए मुसलमानों में जाहिर बात है, पहले आपने बोला कि मुसलमानों का मुद्दा है, फिर मुसलमानों में से किसी लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है हम सपोर्ट करते हैं, फिर आपने कहा आप तो काउंट ही नहीं करते, आप हो ही नहीं। देखिए मैडम, सिर्फ वो जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस या उससे जुड़े हुए संगठनों से जो जुड़े हुए मुसलमान हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी आपको कैसे पता? नहीं, मुझे इसलिए मालूम है उनको। अगर आप देखिए उनकी बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएशन होनी चाहिए, या उनकी किसी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हैं या पसमानदा महज से हैं, यो जो भी आरएसएस से रिलेटेड जो भी एफिलिएशन है उनकी उससे साथ हैं। दूसरी बात मुसलमान नहीं, सुन लीजिए, ये आपने ही कह दिया कि जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो बीजेपी आरएसएस के, तो इसका मतलब जो विरोध कर रहे हैं वो दूसरी विपक्षी पार्टियों के। तो मुद्दा धार्मिक नहीं है, मुद्दा राजनीतिक है, ये आपने खुद कहा ये बात। तो राजनीति इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी राजनीति तो इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, संविधान से भी कोई लेना वही देना नहीं। मुसलमान एक ही धर्म के लोग अगर राजनीतिक आधार पर बटे हुए तो विरोध और समर्थन राजनीतिक है, सांप्रदायिक नहीं है, धार्मिक नहीं है। पहली बात तो ये बड़ी साफ सी बात है, ये खुद हाफिज साहब ने कहा जो ओवैसी साहब की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, पहली बात। दूसरी बात, आप विधि आयोग की बात कर रहे हैं, संविधान निर्माताओं आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा जिन्होंने कहा कि नहीं समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, संविधान में लागू किया, नीति निर्देशक सरकार के लिए मैंडेटरी है। दूसरी बात, तीसरी बात, आप एक बात बताइए कि आप इसको जातियों में, धर्मों में, संप्रदायों में बांट रहे हैं, आप कहते हैं विविधता बहुत है। आपको यह मालूम नहीं कि भारत के बारे में कहा जाता है विविधता में एकता है। उस एकता की बात हम कर रहे हैं कि एक हो सब, विविधता में भी सब एक हो, ये है जो आपकी समझ से परे है। लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि भारतीय जनता पार्टी मैं नहीं बताऊंगा, आप पूछ के आइए पहले, आप विविधता में एकता है कि नहीं, विविधता में एकता है कि नहीं, एनपीपी है, ये आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं? Very interesting. Kalimul Hafiz Saab on the one hand says anyone supporting it is either in the BJP or allies of the BJP. Then in the same breath he also points out that within the allies of the BJP not everyone is in agreement. तो आप डिसाइड कर लीजिए सर कि सारे बीजेपी के लोग ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं या वहां पे भी डिविजन है। बिफोर आई कम बैक टू यू सर, अब आपने एक सर्टिफिकेशन एजेंसी हो गई है दैट द मोमेंट यू स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ सम यू आर लाइक बीजेपी। चलिए आप पे स्टैंप लगा दिया गया, यू आर बीजेपी, नाउ नोबडी केयर्स अबाउट व्हाट यू थिंक। लेट मी ब्रिंग इन यास्मीन फारूकी, जस्ट अ सेकंड, लेट मी ब्रिंग इन यास्मीन फारूकी एज वेल। यास्मीन जी, आज जो है मस्जिदों में क्यूआर कोड लगाया जा रहा है जहां पर ओपनली जो लोग आ रहे हैं जिनको पता भी नहीं है कि यूसीसी क्या है, यूसीसी में क्या ड्राफ्ट में पहले बोला गया है, क्या सजेशंस पास में आए हैं, जिन्होंने अपना कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, उनको क्यूआर कोड देकर के कहा जा रहा है आप इसको स्कैन कीजिए और ईमेल भेज दीजिए अपोजिंग यूसीसी। क्या यह बात सही है कि आप ओपनली एक प्लेस ऑफ वर्शिप का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को एक तरीके से ट्यूटर करने के लिए अबाउट द यूसीसी?
देखिए, पहली बात तो आप जो मस्जिदों की बात कर रही हैं, तो ये बात फैक्ट है कि मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, लेकिन मस्जिदों में सियासी बातें भी होती हैं, क्योंकि ये तय है कि जो खुतबा किया जाएगा वो हालात हाजरा पे किया जाएगा कि जो माहौल चल रहा है या जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं देश में, वो आप इंडिया का ही नहीं है, दुनिया के पूरे देश में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई इश्यूज हैं, तो उन पे डिस्कस आप खुतबे में किया जाएगा। ये इस्लामिक जो है वो कल्चर है, और वो मस्जिदें जो हैं खाली नमाज, ये जो अब कल्चर बना लिया गया है ना कि वो सिर्फ मस्जिदें नमाज पढ़ने की जगह हैं, तो वो गलत है। मस्जिदें खाली नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, वो वहां फैसले भी होते हैं। अब आप बात कर रही हैं कि वहां ये कहा जा रहा है कि इस तरह का जवाब दो। देखिए, मेरा एक छोटा सा बहुत सीधा सा सवाल है कि आपको एक चीज में अमेंडमेंट करना है। मैं मानती हूँ कि संविधान में ये है, बिल्कुल 100% ये एक क्ल्यू है कि उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। उसके लिए भी एक तरीका दिया गया है कि हम राज्यसभा से या राज्यों से प्रपोजल मांगें, उसके बाद एक अच्छा मसवदा तैयार कर दें उसके। लेकिन आप क्या करते हो, एक ऐलान करते हो कि हम तो यूसीसी लागू करेंगे, तो ये चीज जो होती है वो एक दादागिरी वाली बात हो जाती है। यास्मीन जी, फिर आप ऐलान, आप मुसलमानों को अलग कर रहे हो। यही पे थोड़ा सा सच्चाई से अलग बात है। जैसे कि ये मैं पोस्टर, एक बार पोस्टर को देखिए, इस पोस्टर में ये लिखा होता कि अभी लॉ कमीशन सजेशंस मांग रहा है, आप जाकर के अपना सजेशन दीजिए। Everyone has an opinion. आप खुद कह रही हैं सबके ओपिनियन है। यहाँ पे ये नहीं लिखा, यहाँ पे क्या लिखा है, यूसीसी के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। पूरी बात आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि सबको आपत्ति होगी? रीजन उसको खत्म करने दीजिए बात। इसलिए ये तो आप लोगों को कहते हैं ना, लीडिंग बाय द नोज। आदिवासियों को अलग कर देंगे, क्रिश्चियंस को अलग कर देंगे, तो वो एक टारगेट हो गया ना कि मुस्लिम ही टारगेट हैं। ऐसा किसी ने नहीं बोला यास्मीन जी, ऐसा किसी ने नहीं बोला क्रिश्चियंस को अलग कर देंगे, ढके रखते। ऐसा किसी ने नहीं बोला कि क्रिश्चियंस को अलग कर देंगे। कैसी बातें कर रहे हो? आदिवासियों को इससे क्यों नहीं बोला? क्लियर बोला जा रहा है, आदिवासियों को सिखों को अलग कर दिया जाएगा। हाँ। आप कैसी बात कर रहे हो? तो एक बार बोला है, सुशील मोदी ने बोला है, और उन्होंने ये बोला है कि सम ट्राइब्स में बी गिवन एक्सेप्शन, बोला है ना, और वो भी बोला है ना, वो भी इस बिना पर बोला है बिकॉज दे आर अंडर शेड्यूल। सो उसके अलावा हिंदुओं को एक्सेप्शन दिया जाएगा या सिख्स को दिया जाएगा, ये बात नहीं हुई है। नहीं, आप जब डिबेट करते हो ना बैठ के, या बात करते हो किसी चीज की, तो वो 4 मुस्लिम जो चीजें हैं सिर्फ उन पे बात करते हो। आप ये बात नहीं करते हो ना कि साहब सिखों में जो चादर डालते हैं उसको भी वो ठीक किया जाएगा, आदिवासियों में जो शादी कि गोवा में जो एक्ट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या फर्क पड़ेगा, क्रिश्चियंस में जो आनंद मैरिज एक्ट है उसमें क्या फर्क पड़ेगा। एट लेंथ हमने इसकी बात की है। यही तो फर्क पड़ता है कि जब आप उसको ओके इसका जवाब देखिए, पहली बात, एक मिनट में बात पूरी कंप्लीट कर रहा हूं। पहली बात तो अननेसेसरी यूसीसी को पता नहीं कहां से जोड़ा जा रहा है। ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं है कि लोगों का पहनावा एक हो जाएगा, यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड नहीं है कि लोगों का त्योहार एक जैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं है कि लोगों का कस्टम एक हो जाएगा। यूनिफॉर्म, एक बार सुनिए, यूनिफॉर्म क्या एक हो जाएगा उसी पे आ जाइए। हाँ, मैं आ रहा हूं, एक बार। ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है कि सबको एक ही रिलीजन फॉलो करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है कि सबको एक ही भाषा बोलना पड़ेगा, यूनिफॉर्म फूड कोड भी नहीं है कि सबको एक जैसा भोजन करना पड़ेगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अरे बहन जी सुनिए, आप नॉन स्टॉप बोलते रहिए। मैं बता रहा हूं, हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं आपके फायदे की बता रहा हूं। ये यूसीसी, एक बार सुनिए प्लीज, यूसीसी से केवल इतना होगा, शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, इसमें हिंदू मुस्लिम कहीं है ही नहीं है। यूसी से ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा, इसमें हिंदू मुस्लिम कहीं है ही नहीं है। यूसी से गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, इसमें हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं है। यूसीसी से बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा, कहीं हिंदू मुस्लिम है ही नहीं है। यूसीसी भरण पोषण का अधिकार मिल जाएगा, वसीयत का एक समान अधिकार होगा, विरासत का एक समान अधिकार होगा। अरे एज ए एडवोकेट में बता रहा हूँ, ड्राफ्ट नहीं आया इनको मालूम है, लेकिन ड्राफ्ट आया वो खुद को मालूम, वो विरोध कर रहे हैं बिना ड्राफ्ट आए। Can I please request for 20 seconds? Professor Ajaz, the
thing is that this kind of conversation and a debate is great. People should have a conversation. Like Yasmin ji said, aap logon se baat kijiye, you take their opinion, fine. But the moment somebody does express an opinion which is contrary to what you want, their ghettoizing and browbeating is the real problem here. Whenever somebody steps outside of the pale, for example, Arif Muhammad Khan, the governor, when he spoke, people said, he wants to become a part of the Sanghi brigade. When you had people who are carrying out, देखिए ऐसे नहीं होता ना sir. Then you also be said कि you are, an extremist brigade. You won't like it. No. He is a governor. He is already appointed by the BJP government. But a governor is a constitutional post, not a political post. Yeah. That being said, is it okay to silence reformists? Throughout the 7 decades, we are told reform will happen from within. Whenever somebody from within the community says, I support this reform, you say, you are not even a real Muslim. How is reform then going to happen? There are two ways in which civil reforms can take place. One is, of course, is stirring from within that you were talking about, that we need to have a robust conversation, but honest conversation within the community. So once we have a robust communication, and of course, we have to take in consideration the manner in which patriarchy has a strong hold over the communities. So we need to hit upon the patriarchy of all religions, right? So one thing is this, that there need to be an honest conversation, and political leaders, of course, they pitch in this debate with their own political agenda. So the moment when they pitch in the debate, they bring in the whole issue of religion, right? That it is Hindu women who have been reformed, but not Muslim women have been reformed, not Christian women have been reformed, right? So it is not the case. Patriarchy is cutting across religion. It is cutting across caste. So therefore, we need to have now. Okay. So one small rebuttal, and I want to come back to you. आज मैं आपको हेड्स ऑफ कर रहा हूं कि आपने कहा कि पैट्रियोटिक जो है ना और ब्राह्मणिज्म जो है ना वो सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं है। वो जो ट्विटर पे नहीं आपने कहा सभी रिलीजन्स में है। आज आपने माना खुलेआम कि सभी धर्मों में है ये, जिसके लिए गाली सिर्फ हिंदू धर्म को देते थे आज तक, आज आपने मान लिया कि ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था जो है वो सभी धर्मों में है। इसके लिए जो है ना, इसके लिए वो तमाम लोग जो ट्विटर पर वो मीम बना करके घूम रहे थे ना, वो उनको सुनना चाहिए और उनको सुनाना चाहिए। आपको लिख के कहिए कि ये सिर्फ हिंदू धर्म की नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अगली बात सुनिए, बात बड़ी साफ सी है। बार बार ये कहा जा रहा है कि यहां पर अभी इन्होंने कहा कि आपको सब मालूम है ड्राफ्ट, आप भी विरोध करो बिना ड्राफ्ट आए हुए और ये समर्थन करें, आपको कह रहे हो कि आप बिना नहीं एक सेकंड, हमारा विरोध करने का आपने पढ़ लिया, हमारा लॉजिक है नहीं आपने पढ़ लिया, 21वें विधेयक आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की है, उसके बेसिस पर संविधान को पढ़िए, हम 21वें एक बहुत बड़ा जो रिफॉर्म होगा वो तनवीर साहब ये होगा कि पुरुषों और महिलाओं में दोनों की गवाही एक की एक मानी जाएगी, आधी नहीं मानी जाएगी। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यास्मीन फारूकी जी से कही है, जिन्होंने कहा था ना कि उनकी गवाही आधी होती, उनमें उतनी अकल नहीं होती, जो जाकर के कहा था कोर्ट में एफिडेविट दिया था, उसके आधार पर अब सब बराबर हो जाएंगे। मैं मानता हूं, लेकिन साथ में हिंदू वुमेन को भी खुला देने का अधिकार होना चाहिए जो मुस्लिम वुमेन को है, उसको भी खुला देने का ऑलरेडी है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन एनी वुमेन कैन फाइल अ डाइवोर्स केस। Okay, if he's making a fact, let him finish his point. The constitution part, right? Every time now here, what is being misled is the fact that directive principles of state policy is the basic structure of the constitution. Which case has talked about, or Supreme Court has said that basic structure, directive principles of state policy is the basic structure. It is not, right? It is non-enforceable principles which government need to take in consideration while making policies. आप उसको ध्यान से पढ़िए. But there are two things what I want to say about directive principles of state policy, because it's non-enforceable, and therefore why they're picking up of Article 44? Why can't they pick up Article 39 with 4 clauses? Why can't they pick up Article 38? All of them are gender just articles. Why can't they pick up Article 42? But what makes you think that this is not about gender justice? It is not. It is not. It is soothing the patriarchs of some of the religion. That's what I'm trying to say. Because if you go into the history, Hindu Code Bill, Shah Bano case, any reform which is brought about, it is the patriarchs of this community. But it was brought about eventually. Yes. So it was brought about, and nobody is denying that there
wasn't opposition from the Hindu patriarchy at that time. Yes, yes. Fact remains, the reform did happen. Now, sir, a very important point that you made. I'm just coming to you, Ashwini ji. You said there should be a robust discussion, but there should be a secular discussion. Going by what you have heard from Yasmin ji, the examples that I have quoted, what Kalimul Hafiz Saab is saying, do you really think that a secular, robust discussion is even being allowed? Yes, of course. there space for that? Parliament is the place where robust discussion should take place. Sir, Parliament will happen. पार्लियामेंटेरियन ही है. Parliament, it will happen. Yes, yes. But within the community, Come up with a bucket list within of- the community, so Parliament it will happen. I always but say, it is not. Padma ji, It is not just about what Parliament does. Get the bucket list. Parliament will discuss. What exactly you want Parliament to may change? even bring about a legislation. Yes. What will happen? That there will be people on the streets, like was done by this with the CAA. Because right now what we are seeing is not a robust discussion. It is an active misleading and ghettoization, because the robust discussion you're talking about, Let's see when where people, this start discussion that goes. discussion, they are told. So we are preempting the discussion by sir. saying all these things. Let's see. I will tell you there's a historic precedent. There's a historic precedent. Give me one small part of it. Okay, if I may just quote one example, Yes, and yes. it is coming from the governor, Arif Mohammad Khan. He spoke about 1986, and a personal example he said, when the Shah Bano case, and he was opposing it, and he resigned from the union ministry, he said that the All India Muslim Personal Law Board issued an almost diktat saying that if any Muslim MPs support Shah Bano, their legs should be broken. There's a historic precedent for this. It started as misleading. It started as browbeating, and it went to ultimate threats because you have made it about a community. So that's what I'm saying. All India Muslim Personal Law Board, where you will not find any Muslim woman, or it's a highly patriarchal body. Who appoints member over there? But these sir, are the questions. they are made the representatives. No, they are not. Unfortunately. They are not my representatives. You know, let me tell you, if we want to have a robust discussion, let's have the bucket list of the discussions that we want to have. 5 things from Hindu community, 5 things from Muslim community, 5 things from Christian community, 5 things from Dalits, tribals, you know, matrilineal society. Let us bring all these issues together. It should not just focus only on one, because it has become a tool of intimidation. It has become a tool of intimidation. But you, sir, have pointed out a classic dichotomy within the community, because now Yasmin ji is not agreeing with you. Yes, Yasmin ji, respond. Kalimul Hafiz will not respond. Yasmin ji will not agree. Yes, go on, Yasmin ji. देखिए, मैं जो अभी साहब बोल रहे थे उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कोर्ट में औरतों की गवाही 2 होती है क्या आपके यहाँ के कोर्ट में, या एक औरत की गवाही एक मानी जाती है? आपका एतराज गलत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा वो जाने, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तीसरी बात आपसे जो मैंने सबसे पहले कही थी कि आप रूटीन से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। रूटीन बात मैंने आपसे कही थी कि एक संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यों से पहले प्रपोजल लेंगे। आप एकदम से कूद के बाहर, मेरी पूरी बात होने दीजिए, बाहर आके आपने डिसीजन ले लिया। आपने अपनी अभी भी जो गिनवाई चीजें आपने गिनवाई, शादी ऐसे होगी, तलाक ऐसे होगा, गोद लेने का होगा, आपने ये नहीं गिनवाया कि गोवा में जो कानून है कि 25 साल के बाद अगर किसी के बेटा होता तो उसके वो दूसरी शादी कर सकता है। आपने वो सारे और कानून नहीं गिनवाए। पंचायत बंद हो जाएगी, सब कुछ टेबल पर है, सब कुछ टेबल पर है। यास्मीन जी, आप सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। तनवीर एजाज साहब प्रोफेसर हैं, वो एक सिंपल चीज कह रहे हैं। तनवीर साहब एक सिंपल चीज आपसे कह रहे हैं कि आप इसको एक कम्युनिटी पे फोकस करने की जगह आप भले से ही सब पे फोकस कीजिए। आप कहिए कि भाई दलितों से 4 चीजें पूछिए, हिंदुओं से 4 चीजें पूछिए, मुसलमानों से 4 चीजें पूछिए, पर बोलिए तो। हम यही कह रहे हैं। आप यूसीसी में अपनी ऑब्जेक्शन दीजिए, इसको पहले से ये मत कीजिए कि बेकार है, ये हमारे खिलाफ है। बोल ही नहीं रहे। हुदूद लॉज लाना नहीं चाहते हैं। Exactly. हम नहीं लाना चाहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। सिर्फ उन 4 चीजों को लेके गा रहे हैं। कौन गा रहे हैं मैम? ये गवाही सब कुछ टेबल पर है। It's in Pakistan it's called hudud laws. In India we can never have hudud laws. Why we should have? Because it is not Islamic at all. पाकिस्तान में भी हिंदू मैरिज एक्ट 2015 है, वहां पे भी उन्होंने हिंदू, वहां की माइनॉरिटीज को पूरा फुल राइट दिया हुआ है। पाकिस्तान में भी सर अब अपनी तुलना पाकिस्तान से नहीं करते हैं। आप अमेरिका से कर लीजिए ना। अमेरिका में कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं प्रैक्टिस। अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में एक लॉ भी नहीं। अमेरिका में 50 राज्य हैं तो 50 संविधान है।
अमेरिका में भी मिनिमम ऑफ एज और मिनिमम एज ऑफ मैरिज और वो सर रिलीजन के बेसिस पे नहीं होता है। नहीं, बट वहाँ रिलीजन के एक सेकंड, ये तो ऐसा हो गया ना राज्य में तो एक सा कानून है कि ऐसे अमेरिका अलग अलग राज्यों में नहीं, एक राज्य में तो एक सा कानून है, एक राज्य में एक सा कानून है ना, ये अलग अलग है सिविल में कम्युनिटी के आधार पर। सुनिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो बराबर का संपत्ति का अधिकार है। पद्मजा जी, मुझे कितने परसेंट कितने आश्चर्य की बात है। वैसे तो कहते हैं हमारा भी खून इस देश में, इस आजादी में है, कहते हैं हमारा भी खून शामिल है इस देश की आजादी में, हम समान हैं, हम पीछे नहीं हैं। अरे समान नहीं है तो समान नागरिक अधिकार लेने में दिक्कत कहां से है? मैं आता हूं मूल विषय पे। देखिए ओवैसी जी की मजबूरी क्या है, प्लीज बहन जी सुन लीजिए प्लीज, मैंने सुना आपको। ओवैसी जी की मजबूरी क्या है? ओवैसी जी पर्सनल लॉ बोर्ड जो एनजीओ है 1973 में इंदिरा जी ने बनवाया था, उसके मेंबर है। और ये पर्सनल लॉ बोर्ड की स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट है मेरी पीआईएल में, वो आपको बताता हूं। मैंने 4 शादी को चैलेंज किया, पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है 4 शादी होनी चाहिए। मैंने हलाला चैलेंज किया, पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा नहीं हलाला बंद नहीं होना चाहिए। मैंने मुताह चैलेंज किया, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो 10-10 दिन की होती है, पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा नहीं इसमें छेड़छाड़ नहीं, इंटरफेयर मत करिए, इसको बंद मत करिए। मैंने मिस्यार चैलेंज किया, कह रहा नहीं ये चलना चाहिए। मैंने दारुल कजा चैलेंज किया, हमने कहा इस देश में क्या 2-2 कोर्ट चलेगी, शरिया कोर्ट अलग चलेगी, नॉर्मल कोर्ट अलग चलेगी, पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा शरिया कोर्ट चलेगी। तो आप जरा सोचिए, जो पर्सनल लॉ बोर्ड मुता, मिस्यार, दारुल कजा, तहर्रुस, 4 शादी और हलाला, मैंने हलाला चैलेंज किया, पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि हाँ ये भी चलना चाहिए, इसमें आप बंद मत करो। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि हमारी बहन बैठी हुई है जो उस पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर है, जो हलाला के साथ खड़ा हुआ है, उस बोर्ड में रहती कैसी हैं? देखिए वो तो पुरुष हैं, वो ऐसी जो पुरुष हैं, वो अगर हलाला के समर्थन में खड़े हो बात समझ में आता है, लेकिन अगर महिलाएं हलाला के समर्थन में खड़ी हैं तो समझने वाली बात है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 संविधान का कहता है कि आजादी से पहले जो भी कानून थे, क्यों नहीं आते? सुनिए बहन जी, सुन तो लीजिए आदिवासी ने अगर, अरे सुन लीजिए, मैम I'll give you time, ये लगातार बोलती है। प्लीज 20 seconds मिस्टर उपाध्याय, then I will go to Miss Farooqi। Yes। आर्टिकल 13 कहता है पद्मजा जी कि संविधान में 1950 के पहले जो भी रीतियां थी, जो भी कानून थे, जो भी नियम थे, जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, यानी इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी के खिलाफ है, वो सारे खत्म हो गए। तो कायदे से अंग्रेजों का 1937 का शरीयत एक्ट तो 26 जनवरी 1950 को खत्म हो चुका है प्रैक्टिकली इस संविधान के अनुसार। मैं सारे टाइम्स नाउ के कहूंगा दर्शकों को, नहीं आप आर्टिकल 13 पढ़िए एक बार। मैं पढ़ा हूं, लॉ के बारे में कहता है। क्या लिखा है आर्टिकल 13? पढ़िए, कस्टम्स अभी लिखा पढ़ हुआ के है। देखिए। The force of the law must have traditions and customs, which is there. Tribals की तो ट्रेडिशन कई जमाने से चली आ रही है, फिर ट्राइबल पे आ गए। कई जमाने से चली आ रही है। प्रोफेसर साहब पढ़ के देखिए, एक मिनट, आर्टिकल 13 में दलित पे जाने नहीं चाहते, आप सिर्फ मुसलमान पर अटके हुए। आर्टिकल 13 को पढ़िए। आप पढ़िए आर्टिकल 13 लीजिए पढ़िए को। नहीं आप पढ़िए आर्टिकल 13, आप उसको पढ़िए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Are you agreeing, Ashwini Upadhyay? Just you read it. Okay. You read Article 13. What is it? ठीक है, Article 13 says laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. Law includes any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usage in the territory of India. अरे हलाला कस्टम है, मुता कस्टम है, 4 शादी कस्टम है, अरे बाबा, मिस्यार कस्टम है, आर्टिकल तहर्रुस 13 कस्टम ध्यान है। से पढ़ना यानी ये सारे कस्टम खत्म हो गए। I think the fundamental problem that Professor Ejaz is also having is that क्या लोगों ने ऑलरेडी मन बना लिया है that barring Muslims nobody else is going to be brought into question? Is that your case? कि हिंदुओं के क्वेश्चंस नहीं क्वेश्चन किए all of them along. That's what I'm saying. Get all of them along. सिक्स के नहीं किए जाएंगे। मैं रिस्पॉन्स करता हूं। आप Get the tribals along. They should all be discussed. नॉर्थ ईस्ट से सब लोगों को बुलाइए। I was in Manipur. Get all the communities along. आप 5 tenets आप सिखिज्म कर लीजिए, यूसी से प्लीज सुन लीजिए। आप 5 tenets आप सिखिज्म करिए, यूसी से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। 5 tenets आप क्रिश्चियनिटी आप गूगल कर लीजिए, 5 tenets आप इस्लाम गूगल कर लीजिए, 5 tenets आप हिंदुज्म गूगल कर लीजिए, 5 tenets आप जैनिज्म गूगल कर लीजिए, 5 tenets आप बुद्धिज्म गूगल कर लीजिए। किसी भी रिलीजन में जो 5 tenet होते हैं उसमें यूसीसी का इंटरफेरेंस नहीं, गूगल कर लिए प्रोफेसर साहब, आपको क्लियर नहीं होगा, गूगल से नहीं एक बार करिए जरा, आपको समझ में आएगा। सब में 5 tenet होते हैं। अग्निजेश जी, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आर यू ओपन टू डिस्कसिंग द कस्टम्स ऑफ एनी कम्युनिटी which runs converse to uniform civil code? पद्मजा जी, पहली बात तो एक मिनट
बात तो मैं आपका जवाब दे दूं। आपने कहा कि हिंदुओं के बारे में नहीं, सिर्फ मुसलमानों, हिंदुओं का तो 1950 में हिंदू कोड बिल आ गया, वहां पे सती प्रथा, दहेज प्रथा ये सब खत्म कर दी, ऑलरेडी कर दी, ऑलरेडी। ये बात 1950 में हो जानी चाहिए थी। ये बात यूनिफॉर्म सिविल कोड 1950 में आ जाना चाहिए था। मैं जवाब दूं। Are you still open to changing customs? Are you open? जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का एकमात्र ये है कि जहां भी असमानता है, जेंडर बेस, लिंग बेस, महिला और पुरुष में असमानता है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। Let us discuss about abandoned. Yes. Let us discuss about Karta of Hindu undivided family. Let us discuss that. Sir, he is saying he is open. Hindu undivided family, they are open. Yeah, you they are open to Come in. Karta पे discuss करते हैं. Karta के पे. मैं कह रहा हूँ one nation one tax. Tax मैं सपोर्ट करता हूँ one nation one tax को. अच्छा, आप एक बात मुझे बता दीजिए। one nation one tax. टैक्स पे नहीं जाते तो that's a whole other can of work. नहीं, ये tax का issue है. It's part of income tax. All right, so you are open to that. You see, Karta community had why tax exemption to. He's saying he's open. HUF income tax act में है ना. He's saying he's I open. agree with one nation one tax. Now let me ask a question. नहीं, आप सवाल मत पूछिए सर, मैं क्या करूंगी? मेरे को सवाल पूछने दीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है, here you have at least two people who are saying if you want any reforms in any other community, whatever has been left out of the ambit, whether it be the Goa anomaly, the tribals, the Hindu undivided family, etc., kariye. Will you now encourage that same kind of conversation in your community as well, setting aside politics to address patriarchy? देखिए, ये Professor Saab is also saying patriarchy should be the target. We are doing it. देखिए, ये बिल्कुल इसको मिसलीड कर रहे हैं भारत की जनता को। अभी आदिवासी समन्वय समिति के 30 संगठनों ने घूम करके उधर पे आ गए। आप बोलने दीजिए ना, सुनिए ना, ये कैसे मिसलीड कर रहे हैं? कज़ा पे बोलिए, 4 शादी पे बोलिए, भारत पे नहीं बोलेंगे। भारत सरकार का नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे ये कहता है कि पॉलीएंड्री चलिए, we will ask him that very specifically. In principle, everyone is in agreement, barring the politicians, that there should be uniformity. All right? Now answer, when it comes down to it, sir, are you willing to have a conversation within the community saying, engage against patriarchy, setting aside politics? ये जाकर के लोगों को कहना यूसीसी को इमीडिएटली रिजेक्ट कर दीजिए, हमारे खिलाफ एक्सेट्रा, आप एंगेज तो कीजिए। बिल्कुल, आप अपने 4 सजेशन दीजिए। देखिए, हमने यही सजेशन दिया है, अभी इस वाले 22वें विधि आयोग को भी हमने सजेशन दिया है कि ये कम्युनिटी स्पेसिफिक रिफॉर्म्स होने चाहिए, ना कि ये यूनिफॉर्म होने चाहिए। कम्युनिटी स्पेसिफिक जो रिफॉर्म है, उनमें जो भी कोई ऐसी कोई कुरीति है जो आपको लगती है, जो इक्वलिटी या जेंडर जस्टिस के खिलाफ लगती है, रिफॉर्म कैसे होगा? कम्युनिटी करेगी, आप कम्युनिटी को एंगेज करेंगे। बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं किया? सर नहीं, अगर आप मौका देंगे, अगर यही देखिए 21वीं विधि आयोग ने यही मौका दिया था, इसलिए 21वीं विधि आयोग की रिपोर्ट पर आप 185 बाकायदा अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कम्युनिटी स्पेसिफिक रिफॉर्म होने चाहिए। लवली, वो रिपोर्ट कब आई थी सर? 2018 में। 2018 से 2023 हो गए, 5 साल में कितने रिफॉर्म्स कर लिए कम्युनिटी ने? गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं। कलीमुल हाफिज साहब, कम्युनिटी के बारे में एक सिर्फ 10 सेकंड में ले दूं कि कम्युनिटी का रिफॉर्म तनवीर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया शाहबानों के बारे में, कम्युनिटी ने उसका विरोध किया, पार्लियामेंट में उस कानून को बदला। आप कम्युनिटी की बात मत करिए प्लीज, कि हम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। ये तब बंद हुआ जब कानून आया। सबरीमाला में स्टे सुप्रीम कोर्ट से आया, सबरीमाला में स्टे सुप्रीम कोर्ट से आया। कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल देती है। बहुत बात है, आपकी कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल देती है। आप नहीं, ये देखिए, मैं एक एग्जांपल एक बहाउल्लाह खान, आपने बहाई फेस सुना होगा ना, ये लोटस टेंपल दिल्ली में बना हुआ है। बहाउल्लाह साहब इस रेडिकलाइजेशन के खिलाफ थे, वो चाहते थे महिला पुरुष को समान अधिकार मिले। जैसे एक दिन स्पीच दे रहे थे, एक आदमी आया, सीधे तलवार से उनका धड़ उखाड़ दिया। शायद इसीलिए हमारे जो इतने मौलवी हैं, मौलाना हैं, जैसे प्रोफेसर साहब है, जो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उसमें इट्स बट्स लगा रहे हैं। कभी ये नहीं कहते कि महिला और पुरुष को एक समान अधिकार होना चाहिए, कभी ये नहीं कहते हलाला बंद होना चाहिए। कहीं हम करेंगे, हम करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे आप मुझे क्लब मत कीजिए। पॉलीगेमी को हमने विरोध किया है, मैंने आउटलुक में अभी रिसेंटली हलाला भी हम सपोर्ट नहीं करते हैं। सपोर्ट करो, पर यूसीसी जो है, यूसीसी मामला नहीं है, यूसीसी मामला डिफरेंट है। मुता सपोर्ट करते हैं आप,
सॉरी, मुता, IMUTH, मुता। नहीं, मुझे मुता, हम इस्लामिक स्कॉलर नहीं, आप होंगे, मैं नहीं हूं, मैं उतना जानता नहीं हूं, लेकिन मोटा मोटी रोज हो रहा है। Okay, you know, I think it's not fair to box him in. He's saying largely कि जो रिफॉर्म है वो सपोर्ट करते हैं, but it should be gender just. मैं ये पूछ रहा हूं, मेरी 4 बेटियां हैं, अगर मेरी 4 बेटी है कि हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे, उन चारों का शादी के बाद सिविल राइट क्यों अलग होना चाहिए? उनका गुजारा भत्ता चारों का अलग अलग क्यों होना चाहिए? उनका गोद लेने का अधिकार अलग अलग क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने चूज किया है। अरे आप भी चूज करते हैं, एक भारत में रहते हैं, कहां से बनेगा एक देश विधान? आप राइट टू चॉइस खत्म करना चाहते हैं आप? Okay, I'm just going to finally leave it at this. आपका संविधान दे रहा है, उसको UCC दे दो, ना माने वो सरिया में जाए तो जाए, हमारा नहीं UCC दे दो, संविधान राइट टू चॉइस देता है भाई। I am just going to leave it at this. You always have moderate voices who will support reform. Until politics gets involved, the moderate voices will be more sensible. Don't let the more radical voices drown them out. Look at it as an issue of gender justice. Engagement and not fear-mongering and ghettoization is the need of the hour. I'm going to leave it at that. Thank you very much, all gentlemen, Yasmin Farooqi, for joining me.